Very good afternoon, viewers. Today, I'm your host, Abhishek Datta, for this session. And this session would be more focused on MBA, the Master of Business Administration. So right now, like CAT 2020 exams are 6 or 7 months away, and everybody must be thinking about where or which colleges they must opt for their MBA degrees, because post graduation is something that everyone wants to do from a nice place to have a better package, to have a secure future. Now, the very first question that comes into the minds of any single aspirant is whether they should pursue MBA from the Indian universities or from the foreign universities. Now, each universities or each colleges have their own specialities, have their own fortes, have their own package settlements, have their own infrastructure levels. So today we are here to have a small discussion on whether the aspirants of CAT 2020 should pursue MBA from foreign universities or from the Indian universities. And to carry forward this discussion, we have two of our most amazing and adorable VARC educators of Unacademy CAT, Bhagyashree ma'am and Abhilasha ma'am. Welcome to this session, ma'am. Thank you. I hope in this Abhishek. lockdown, everything is well and good over there and back at your homes. Yes. Yeah. Absolutely, yeah. All good. Okay, Good, yeah. all right. So we'll start off this discussion. We'll kick off this discussion. So Bhagyashree ma'am would be representing the Indian universities, and Abhilasha ma'am would be defending the foreign universities. So it's gonna be a small debating discussion, as we all can see into the eyes of the educator. So I hand it over to both of them. You can take it forward. All yours. That, ma'am. All right. Chalo, let me begin the discussion by first congratulating everybody who got into IIM A, B, and K. The results came out. So that was the first and the greatest news. So given that in mind, keeping all the results that are coming in right now, is it really, really good? Does it really make a lot of sense to get into MBAs in India? And that's what we are debating. So what I would like to say is that foreign universities are definitely a better bet for anyone who's thinking about doing an MBA. There are so many reasons for that, and we will go into each one of those. But the first and the foremost reason is that none of the Indian universities come in the top 100 of the world. So if you want to do an MBA, if you want to invest 2 years of your life, why would you study in an institution which does not even rank in the top 100 in the world? So I feel that anyone who's really serious about building a career in business management should be thinking of going into a B school that at least has a great rating. And unfortunately, none of ours do. So that's my first thought going into this discussion. Okay, ma'am, your point is so nice that it's an international university and none of our or very few of our universities are among the world's top, world's best. We know that. But still we are Indian, like we have certain other parameters, other challenges too. Yes, of course, doing an MBA from a branded college makes sense. But why? The purpose is why a person is pursuing an MBA just because to build a great reputed career. Yes, a person doing an MBA from abroad means yes, investing a lot of money going there, and of course there are so many things. There are assistance grants available, but still there is a lot of hassle going over there. Then there is a different procedure that varies from institution to institution, college to colleges,
But if we talk about the Indian ones, they are not so bad. If we check the IIM details and the data, there also a person has a great career opportunity. IIMs boliye, ya fir there can be certain other institutes in our country. Well, Bhagyashree, you forget that there are 5,000 MBA institutes in India. yes. And all the people who are writing this exam are not going into that top 10, top 15 institutes. Exactly. So there are hundreds of thousands of people who will take this MBA dream and who will go into colleges which will be tier 3, tier 4. And then their placement dreams, their business dreams, their life dreams are shattered because they come out with horrible placements, something to the tune of 10,000, 20,000 per month, and their money is wasted, their lives are wasted, their entire career trajectory goes into an absolutely terrible path. So somewhere when we tell our children that, okay, listen, you must go into a B school in India, then aren't we cheating them by telling them that, oh, all of these B schools are wonderful, think about these? And somewhere there is that demand supply gap. So aren't we really being unfair to the students when we say that, oh, because we are in India, let's go to these 5,000 institutes and let's study here, be Indian. Yeah, be Indian is good. All of us love that. The namaste is spread everywhere in the world. But क्या ये नमस्ते हमें बी स्कूल और जीवन के रास्ते पे ले जाएगा? क्या हमारे वो जो $1 million करियर ड्रीम्स है वो सच होंगे? नहीं. मेरी पजेरो कैसे आएगी अगर मैं XYZ B स्कूल में पढ़ रही हूँ? Okay, मैम, the thing is कि एक चीज तो आप भी मानते होंगे मेरे साथ कि everyone is a relative pauper. है कि नहीं? So yes, agreed. है ना? So agreed. So अब एक $1 million ड्रीम की बात करें, so someone Bill Gates को पूछ लो, are you Amir? He will say, I don't know. I'm just working to make money, make more money and everything. Yes, of course, they are also doing philanthropy because they are really Bill Gates. So like Bill Gates है यार. For every level, so एक एक करके सारे आंसर्स को मैं ब्रेक करती हूँ जो चीजें आपने बोली, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इट इज डूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूट इज जस्ट द वेरी फर्स्ट थिंग बिकॉज it will bring what? It will bring a good career opportunity, but what about pursuing an MBA from India in itself? अगर हम बात करें, अच्छा जैसे पहली बात करी आपने बोला मैम कि बहुत not everyone is reaching those top institutes, ठीक है? There are 5,000 institutes in our nation. सही है, माना कि क्योंकि अगर MBA किसी बुरे इंस्टीट्यूट से किया तो it's okay. Now considering these factors, कि let us say the top 20 universities और top 30 universities जिसमें IIMs and non-IIMs भी मौजूद है इंडिया में. Now 30 IIMs and let us say every institute is taking on an average 200 students. At least we have many students who are pursuing their MBA in our nation. They are getting a lot of facilities. They are getting to live here. It's about affordability. It's about no confusion. If we talk about getting into the IIMs or any other college, student just Bhagyashree, when you talk of affordability, yeah. Okay, sorry, I just want to break in for 1 second. Sure. Remember, an IIMA fees is 30 lakhs plus add on to it another 20 lakhs for living expenses, internship, etc. So spending 50 to 60 lakhs over the course of 2 years cannot be cheap. So when you say that it is affordable, remember we are a country where mostly everybody is in the middle class. My father earns a salary of 70,000 rupees. He would never be able to afford a 60 lakh expense. So then that game of money, that whether it is affordable is actually dependent on student loans, isn't it? So then वहाँ जाओ या यहाँ आओ, हार्वर्ड में करोगे तो कम से कम पास आउट होके प्लेसमेंट तो लोगे 5 करोड़ का. यहाँ तो वो भी नहीं मिलने वाला है. 5 करोड़ का प्लेसमेंट लेना है तो उसके लिए जाने के लिए भी तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. Of course, उसके बाद में we have scholarships and everything. There are lots of scholarships, yeah. Full 100% scholarship. There are a lot of Harvard, Columbia, Yale, जहाँ भी जाओगे, एकदम supreme scholarships हैं. I agree. मतलब मिल सकता है. Of course, बिल्कुल. Merit है तो merit तो चाहिए ही है ना. अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो फिर तो कुछ अच्छा होना ही पड़ेगा. अब मैम ऐसे ही घटिया जीवन में रहेंगे. Yes, exactly, ma'am. हमारा जो discussion है, अगर हम लोग if we talk about those specific bright mind students who are actually capable
to either get into the IIMs or get into the GMAT. That is a different level of discussion. लेकिन उनका क्या, जिसने बेचारे ने कैट दिया and उसका 90 परसेंटाइल आ गया, 95 परसेंटाइल तक आ गया, we cannot tell them कि आप लोग घर बैठो and अगले साल MBA करना, क्योंकि you are not going to get into the top college. अच्छा, अगर हम लोग बात करें फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने की, वहां पे कैट नहीं है, we all know, you also know, I also know, everyone know. वहां पे जाने के लिए भी आप आइदर GMAT या फिर कोई दूसरा इंटरनेशनल GMAT ही करना पड़ेगा अगर आप यूएस से एसोसिएटेड कर रहे हैं। और भी हो गई कि इट इज नॉट जस्ट द GMAT जो कि उनको क्लियर करके गारंटी देगा कि आपको कॉलेज जाना है, जैसे कि इंडिया में है, they give the CAT exam, then they know कि after CAT you have to go to certain GDPI rounds, somewhere there are WAT, somewhere they are like they have like scrapped it, at least they know the further procedure and सारा चीजें sorted है। अच्छा, but that is also very clearly specified in the US universities. In fact, abroad सब जगह बड़ा streamlined process है। आएंगे, आपको SOP पे measure करते हैं, आपके पुराने स्कूल के परफॉर्मेंस पे measure करते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे करते हैं, और वहाँ तो बहुत अच्छा है कि आप अगर वर्क एक्स नहीं लेके गए हैं तो आपको MBA में एडमिशन ही नहीं देंगे। वो तो फर्दर इंडिया में भी है, बहुत क्लियर है। आपके पास एक सर्टेन प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल पे ही बिल्ड कर रहे हो, तो रास्ता बहुत सिंपल और बड़ा साफ होता है टॉप 20 स्कूल्स के लिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि हम whims and fancies पे डिपेंडेंट है ऑफ द कॉलेज। दे हैव अ वेरी क्लियर कट प्रोसीजर फॉर दैट। ओके, सॉरी, नहीं आप बोल रहे थे। ओके, नहीं मैम, रास्ता सिंपल है, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग बात करें, इज GMAT स्कोर इनफ? सबसे पहली बात तो स्कोरिंग 730 प्लस विल इंश्योर यू कि यू आर गोइंग टू द टॉप राइट यूनिवर्सिटी। दूसरी बात यह है कि मान लो किसी ने पढ़ लिया, अच्छे से स्कोर कर लिया, देन सबको एक, जैसे दूसरा हो गया रिकमेंडेशन जो लेटर होना है, वो भी लिखवा ले। एंड नाउ रिकमेंडेशन लेटर विल डिपेंड, समटाइम्स देयर इज अ फिक्स फॉर्मेट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, चलो वो भी करवा लिया, बट इट जस्ट डिपेंड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ हैसल। ये काफी नहीं है, चलो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, अब क्या करना है? अब उनको काफी सारा काम करना है। दे विल हैव टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, इट विल बी टाइम टेकिंग। अब अगर हम लोग इस टाइम टेकिंग चीज को यहाँ अप्लाई करें, देयर आर द वेरियस सेशंस, विंटर सेशन हो गया, देन जो समर सेशन हो गया, सो डिपेंड करेगा प्रोसीजर टू प्रोसीजर, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर डिफरेंट हो जाएगा। सो नाउ देयर इज नो कॉमन थिंग एक्सेप्ट द GMAT, जिसके अलावा एक इंसान को चॉइस हो कि मुझे यहाँ जाना है कि नहीं। एक चीज और होती है मैम, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी वो ही पर्सन सिलेक्ट होता है जिस पर्सन का कुछ डिफरेंट हो। वी हैव टू शो कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स। अब जिसको MBA करना है यहाँ से, वो मान लो कि कोई IT सेक्टर का है, IT सेक्टर से करके, तो देयर आर, मतलब in our nation almost the syllabus is equivalent to every university. So when every aspirant, almost everyone is providing the same qualification, then going there outside, then India में harsh reality ये है कि India के applications ज्यादा reject होते हैं, selection के भी chances है। मैम ये तो वही वाला केस है कि CAT दिया किसी ने, IIM जाना है, 99 आया, सिलेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, लेकिन उससे बुरा केस हो जाता है GMAT का स्कोर आया, फिर भी सिलेक्शन रिजेक्शन का केस। अब सिलेक्शन रिजेक्शन तो भाग्यश्री यहाँ पे भी हुआ ना। आप IIM अहमदाबाद में जाते हो इंटरव्यू के लिए, IIM बेंगलुरु में हो जाता है और IIM लखनऊ में नहीं होता है, या IIM कलकत्ता में हो जाता है और IIM अहमदाबाद में या बैंगलोर में नहीं होता है। तो ये तो सर्टेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो इंस्टीट्यूट्स का है ही है। चाहे आप हार्वर्ड की बात कर रहे हो, चाहे आप IIM बैंगलोर की बात कर रहे हो, all the institutes have their own criteria. So certain places will take a math heavy score, certain places will take a BA heavy score. So that is there in GMAT also. Yes. Some institutes will be more inclined towards a math heavy score, जहाँ पे बहुत math का course work होता है। तो ये चीज तो सभी जगह है कि अपने अपने whims और fancies। आप मुझे बताओ, क्या IIM अहमदाबाद नहीं inclined towards English है? क्या IIM बैंगलोर या IIM कलकत्ता maths inclined नहीं है? तो ये तो बहुत क्लियर है ना। तो हर इंस्टीट्यूट्स की अपनी whims and fancies तो इंडिया में भी है, ऐसे ही वहां पे भी है। और जहां तक रिसर्च करने की बात आपने कही कि यू शुड बी रिसर्चिंग, बंदे को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो जो इंसान जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहता है, देखो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है तो चढ़ना तो पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता है कि आप यहाँ बैठे ऐसे किया और आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच गए। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया अचीव करना है तो वो
एफर्ट और वो एबिलिटी और वो रिस्क टेकिंग तो लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर एलॉन मस्क एक समय ये नहीं कहता कि मैं पागलों की तरह ये कैप्सूल भेजने के पीछे पड़ा रहूंगा, तो वो कहाँ नासा को टेक ऑन कर पाता, नहीं कर पाता। और अगर वो नासा को टेक ऑन नहीं करता तो आज हम स्पेस एक्स की बात ही नहीं कर रहे होते, हम टेस्ला की बात नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये जो एफर्ट है वो तो एफर्ट सब जगह है। यहाँ पे भी जो बंदा कैट लिखेगा उसे मेहनत करनी है, प्रोफाइल बनानी है, बिना प्रोफाइल बने तो आईएम में भी नहीं एडमिशन मिलेगा। एक्सेलराई में जाओगे तो 10th से नंबर लेते हैं, एक्सेल में अगर आपका 10th और 12th का नंबर अच्छा नहीं है तो लेगा नहीं आपको। तो यही चीज तो प्रोफाइल बिल्डिंग है। तो यही प्रोफाइल बिल्डिंग वहां पे भी देखता है, 10th और 12th का नंबर देखता है, ग्रेजुएशन का देखता है, आपने क्या किया है लाइफ में। तो वो तो आज की तारीख में सारे आईएम्स भी देखते हैं। इफ यू लुक एट गुड इंस्टीट्यूट्स, all of them are looking for profile. So saying that they are not making you do that work, that is unfair. No, and they are making you do that kind of work. Plus अब तो सब इंस्टीट्यूट्स वर्क एक्स हैवी होते चले जा रहे हैं, प्रोफाइल मांगते ही मांगते हैं। तो जब हम प्रोफाइल मांग ही रहे हैं, जब हम सब कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क रिसर्च है, तो क्यों नहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए। अगर मैं चॉइस अगर मुझे मिले तो मैं आई वुड डेफिनेटली प्रेफर अ हार्वर्ड फॉर माय चाइल्ड दैन एन आईएम लखनऊ, because definitely the kind of efforts that I will put in will be almost the same and the rewards will be drastically different ना। बहुत फर्क हो जाएगा। आप हार्वर्ड से निकलोगे तो आपकी प्लेसमेंट जिस टाइप की प्रोफाइल मिलेगी वो प्रोफाइल आप यहाँ सोच भी नहीं पाओगे, है ना। तो वो फर्क तो कहीं ना कहीं होगा ही इन टॉप बी स्कूल्स। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज सोचोगे, where do we bring that, plus the kind of education that our institutions are giving। मतलब अब आज भी हम केस स्टडीज हार्वर्ड की यूज कर रहे हैं सारे बी स्कूल्स में, तो कहीं ना कहीं कॉपी तो कर रहे हैं उनको। तो उनकी केस स्टडीज क्यों, अपनी क्यों नहीं? अपनी इसलिए नहीं क्योंकि हम आज भी मानते हैं कि हार्वर्ड जो है ज्यादा अच्छा है। मैम ये तो बात आपकी एकदम सही है, मैं आपकी एक बात से कंप्लीटली एग्री करती हूँ। बट इधर हो गई एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैम जो इंसान हार्वर्ड टारगेट कर रहा है वो हार्वर्ड के काबिल है तभी वो टारगेट कर रहा है। जैसे की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की, आई एम जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट एंड आई विल ऐड ऑन टू माय ओके। तो अभी जो जिसका काबिलियत से थोड़ा सा मिस हो गया। सबसे पहली बात कि गोइंग फॉर अ जीमैट एंड गोइंग फॉर अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट। अगर हम लोग देखिए इकोनॉमिक बैकग्राउंड को चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ा। अब एक आता है सोशल पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें आता है यू विल बी गेटिंग अ गुड एक्सपोजर, रिच लाइफस्टाइल हो जाएगी क्योंकि वहां का प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा, कल्चर, एक्सपोजर, एवरीथिंग। एवरीवन हैज डिफरेंट एक्सेप्शंस। हर बार जरूरी नहीं होता कि इंसान बाहर जाएगा, दे विल रीड फ्रॉम देयर एंड दे विल बी गेटिंग अ बिग ग्रैंड प्लेसमेंट एंड वो बाहर ही रह जाएगा। इन लोग वापस भी आ जाते हैं। सेकेंड थिंग इज कि समटाइम्स देयर इज अ साइकोलॉजिकल पैरामीटर जिसमें इंसान अपना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देखता है। अच्छा उन स्टूडेंट्स का क्या होगा मैम जिन्होंने कैट चलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने उनको बोल दिया कि जाओ बेटा तुम्हें जाना है हार्वर्ड, उसने दे दिया जीमैट, उसके 730 आए नहीं, उसने बहुत मेहनत की, उसके आए नहीं। अच्छा ठीक है चलिए, अब हम और आप एजुकेटर्स, हमने उसको बोल दिया एक काम कर, तू बैकअप के लिए तू कैट भी दे दे, लेकिन गलती से उसके कैट में आ गए मार्क्स। ऑल्दो there are different parameters, verbal is difficult in GMAT we all know and it's okay to manage, but quant is here difficult in CAT, that we know। मान लो उसके कैट में आ गए 99, अब हम उसको क्या बोलेंगे, बेटा तू अगले साल फिर GMAT दे, तू बैठ जा या तू IIM अहमदाबाद चला जा। So the practical point will be to let them study in India। अब क्या होगा, प्लेसमेंट भी तो आएंगे। इफ इट इज रियली अ गुड कॉलेज डिजर्विंग वन, अगर बच्चा खुद डिजर्व करता है, सो वो इंडियन कॉलेजेस में रह के भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट उनको मिलता है। अब बात आई कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट में तो उतना पैकेज उसको मिलेगा नहीं जितना फॉरेन में। अब मान लीजिए कोई हार्वर्ड में ही पढ़ा, ठीक है, अब उसको वर्क करना है, मान लो उनको वर्क करने के लिए मिल गया कनाडा में, जाओ एंड वहीं पर रह के वर्क करो। अभी वहां का लिविंग एक्सपेंस देख लीजिए, इंडिया का लिविंग एक्सपेंस देख लीजिए। इंडिया में इफ आई टॉक अबाउट, लाइक आई एम स्टेइंग इन बरेली, इट्स अ बी टाउन, सो इस बी टाउन में अगर किसी का ईयरली इनकम 6 लाख पर एनम भी है ना, वो मोर देन इनफ है। इफ आई टॉक अबाउट द मेट्रोपॉलिटन्स, स्टार्टिंग सैलरी अगर किसी की 12 भी है, 12 to 15 भी है, सो इट इज अ काइंड ऑफ लैविश। लेकिन
ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग तो प्लेसमेंट में कुछ भी दे, फिर वो ऊपर भी तो जाता है इंसान, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ और भी बातें हैं। इंसान को नॉट ओनली ये देखना चाहिए कि बाहर जाना है, इन्वेस्ट करना है, लोग अब जाने आने का टिकट का प्राइस एंड एवरीथिंग, नॉट एवरीवन इज दैट वेल ऑफ। इंडिया में एटलीस्ट बात ये है कि इंडिया में देयर आर वेरियस एजुकेशन लोन्स, गवर्नमेंट्स आर फंडिंग, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वेंचर्स, दे आर ऑल फंडिंग। सो अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वेल मैम आपकी बात से मैं परफेक्टली सहमत हूँ कि हार्वर्ड में द क्वालिटी एजुकेशन विल बी गुड। इट्स ओके ना, इंडिया में नहीं है, लेकिन एक चीज वी कैन कंसिडर दिस, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी बात करूँ, फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस हूँ मैं, आज क्या कर रही हूँ, टीचिंग, वो भी बीआरसी, सोचा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, इंडिया में एमबीए फाइनेंस करके टीचिंग क्यों करनी पड़ी, एमबीए फाइनेंस का काम क्यों नहीं करना पड़ा? नहीं, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इनटू टीचिंग, सो हाँ आई वाज ऑलवेज इनटू टीचिंग। मैंने फाइनेंस डिस्टेंस से किया था, मेरे को करना नहीं था, मेरा तो करियर मैं डिस्कस ही नहीं करती। ठीक है, अच्छा हाँ, नहीं वो सीरियस सी बात है। अब अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं, मेरे फ्रेंड ने मार्केटिंग में एमबीए किया था, लेकिन ही इज हैंडलिंग द ऑपरेशंस का पोर्टफोलियो। सो एक ने आईटी सेक्टर में आगे जाना था, लेकिन उनको मिल रहा है अपने कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग का काम करना। तो मैंने कहा जब इंडिया में ऐसा चल रहा है कि योर एजुकेशन में वेरी फ्रॉम द वर्क दैट यू डू, तो काम क्या करना है, सिंपल है, जहां पे जिस भी इंडस्ट्री में है वहां पे वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया, एग्जैक्टली आपका डायरेक्शन फिक्स होगा कि इस डायरेक्शन में मुझे फर्दर काम करना है। अब क्या है, स्किल्स को अपग्रेड कर लो, कुछ नया सीख लो। यही तो प्रॉब्लम है ना भाग्यश्री, देखो इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ 10 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं जी, और वो 10 लाख बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक पीओ, एसएससी, फलाना ढिकाना के एग्जाम्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है वो गलत होता है, हाँ, या और वो उधर नहीं होता है, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ। यही चीज एमबीए में भी हो रही है। जो बच्चे टियर 3 टियर 4 के भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया बेचने का काम करना पड़ता है उन बच्चों को। That is such a sad thing. After spending 12 to 15 to 20 lakh rupees on an MBA, you end up selling, and I'm being very real about this, they end up selling encyclopedias. आप देखिए सेल्स वाले लड़के जो आते हैं आपके घर में आते होंगे, कहते हैं हमने फलाना कॉलेज से MBA किया और हमें इंटर्नशिप में ये काम मिला है। हमने भी MBA किया है, इंटर्नशिप में हमने कितना अच्छा काम किया था, ब्रांड मैनेजमेंट पे काम किया था। But they don't. That made sense. Now, when you do your MBA from a 3rd tier or a 4th tier institute, you are forced into taking any sort of job because they are not given the right kind of skills here. Because you're not given the right kind of skills and the right kind of exposure, you end up compromising with your dreams. अगर मेरा सपना मार्केटिंग का है, ब्रांड मैनेजमेंट का है और मैं सेल्स में काम कर रही हूँ, मेरे सपने शाटर हो गए हैं, तो I have been compromised by my education. Unfortunately, that is what is happening in education in B schools in India. You go to any school, go to Pune, every one floor there are 3 B schools. 2 floors there are another 2 B schools. In one building there are 5 B schools running. Imagine the state of education that they would be giving. The teachers themselves don't have PhDs. Most of them are just pass out, go into a B school, start teaching. जहाँ टीचर्स ऐसे होंगे वो क्या ही पढ़ा रहे होंगे और वो बच्चा क्या पढ़ रहा होगा। इससे अच्छा नहीं है कि वही 20 लाख लगा करके कुछ और काम कर लेते या अपने आप को रीस्किल कर लेते या कुछ और करते या कुछ और करते। क्यों ही ऐसे गलत एमबीए के ड्रीम में जाए? अगर जाना है तो सही एमबीए में जाओ ना, सही एमबीए में जाओ। ऐसे किसी भी खराब एमबीए में क्यों जाना जहाँ पे तुम्हारे सपने शैटर हो जाएंगे। और फैक्ट यही है, हम जब बच्चों को कहते हैं एमबीए करो तो हम बच्चों को सपने दिखाते हैं पजेरो के और गिरा देते हैं साइकिल पे। ये एमबीए, इंडियन एमबीए की यही रियलिटी है, तो ये रियलिटी शायद सही नहीं है। Yes, देखिए मैम, I तो perfectly agree with this point of view कि doing an MBA from tier 3 colleges, tier 2 colleges do not make sense. Definitely, but in our country still, if we talk about top 30 colleges containing IIMs and non-IIMs, some IIMs तो मैं personally बोलूंगी कि ये IIMs को मैं top 30 में नहीं मानती, which will be those good colleges जिसका placement package इतना हो कि इंडिया में एक पर्सन खुद को, जिसको बाहर नहीं जाना है मैम, जिसको अपना वो जो इतना इमेजिन नहीं करना है, जिसको कि मुझे बाहर जाना है, फैमिली को छोड़ के रहना है, एंड आई विल बी लाइक ओके अर्निंग इन मिलियंस बट आई डोंट नो अबाउट माय फैमिली, बिकॉज इंडिया है, वी आर ऑल सोशली कनेक्टेड। एक होता है फॉरेन कंट्रीज में द कल्चर इज वे डिफरेंट, हियर
a person gets at the age of 18, 21 हुआ, 18 का हुआ, बस they are like अभी कोई मतलब नहीं है, फैमिली है, पेरेंट्स, अभी कोई मतलब नहीं है. लेकिन इंडिया की तो रियलिटी ये है मैम कि कितने देर तक इंसान अपने फैमिली से ज्यादा दूर जाके रहेगा. इंसान इंडिया में रहेगा, एटलीस्ट दे विल बी लाइक, सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. ये पर्सपेक्टिव मैम, इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ज्यादा, कुछ ना आप कुछ ज्यादा कर सकते हो. चॉइस होती है लोगों की. हाँ, आज का जो डिबेट है, हमारा आपका काम ये है कि सबको प्रोज एंड कॉन्स बताने का. सो यस, तो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से एमबीए नहीं करने का. लेकिन आई विल स्टिल स्टिक टू माय डिफरेंस कि इंडियन कॉलेजेस में भी अपॉर्चुनिटीज फुल ऑन भरे पड़े हैं. एंड यहाँ पे स्टार्टिंग हो सकता है, वी आर सीइंग द प्लेसमेंट, वी आर एक्चुअली सीइंग द नंबर कि स्टार्टिंग में ये दे रहा है 12 लाख. अरे 12 लाख से क्या होगा, आरओआई ही नहीं निकला. अरे आरओआई, अगर हम लोग ये बात करें कि कोई स्टूडेंट इंडिया में 80% स्टूडेंट जो आईएम जाता है वो लोन लेके जाता है. सो आईएम की फीस 25 लाख, 30 लाख, चलो 30 तो नहीं जाता, चलो मानो उसने 30 लाख का दिया, क्योंकि बैंक लोन 30 लाख तक दे देता है आईएम्स के लिए. कुछ अपना लगाया, कुछ 30 लाख उसने लोन दे दिया. अभी इंडिया में क्या सिचुएशन है, दैट इज लाइक काइंड ऑफ यूनिवर्सल, क्योंकि आरबीआई सब अपने अंडर लेता है. इंडिया में आइदर लोन मतलब कोर्स के बाद 6 मंथ या फिर जॉब लगने के बाद, जॉब लगने के बाद 6 मंथ, या जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद 1 ईयर का होगा मोनोटोरम पीरियड. मोनोटोरम पीरियड में स्टूडेंट को कुछ भी वापस नहीं करना है. सो जब प्लेसमेंट हो जाती है तब भी पूरा 1 साल स्टूडेंट को कुछ नहीं वापस करना है. सो अगर उसको इतनी सैलरी मिल जाती है एंड लोन है, एक दिन में थोड़ी ना वापस करना है. अब अगर हम बात करें कोई कैट में 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल लाके एफएमएस चला जाए, जेबीआईएमएस चला जाए, 8 लाख की फीस है जेबीआईएमएस में, या फिर देयर आर सो मेनी ग्रेट कॉलेजेस इन आवर कंट्री. कितने कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप भी दे रहा है. अगर इंसान वहां चला जाए, एक तो आरओआई भी कम, मतलब सॉरी, एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम, आरओआई ज्यादा, एंड कंट्री की रियलिटी को देखे तो इट्स अ सॉर्ट आउट थिंग कि यस, इंसान यहीं पे है, कम लागत में ज्यादा मिलना. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको कितना चाहिए. सो कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है इसमें. इट्स अ चॉइस दैट वेरी. हाँ, जो इंसान खर्चा ज्यादा देखता है, हम इंडिया में फ्रूगल लोग बहुत होते हैं, बड़े कंजूस लोग होते हैं. सो अगर मैं उस फ्रूगलनेस को देखूं तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला चैलेंज आएगा, एक मीडियोकर मिडिल क्लास, नॉट मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो मिडिल क्लास है, उसको जीमैट का फॉर्म भरने में सबसे पहला चैलेंज आएगा. उसके पेरेंट्स बोलेंगे तू कैट क्यों नहीं देता, तू जीमैट क्यों दे रहा है. हाँ, जो वेल ऑफ फैमिलीज से है, दे विल डेफिनेटली ड्रीम ऑफ, एंड इवन आई विल एनकरेज देम टू एक्सप्लोर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज. बट देयर इज नो कमी इन इंडिया. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई. ओके, शांति शांति. शांति है. We are not going to tear each other's hair out. Don't worry. No. This is basically the first. But I still feel that Harvard अच्छा सपना है. भाग्यश्री, तुम भी देखो वो सपना. I agree with you, ma'am. मैंने तो बस अपना point of view रखा. I really agree with you, क्योंकि इनमें कोई भी अच्छा, कोई भी बुरा नहीं है. सबका अपना pros and cons है. Definitely. बिल्कुल. Okay. Closing statements, please. Closing statement. Okay. इस बार हार्वर्ड से स्टार्ट करेंगे. पिछली बार भी हार्वर्ड ने स्टार्ट किया था. वर्ल्ड लीडर है हार्वर्ड, तो इसलिए बिल्कुल. तो ठीक है, तो इस बार फिर आईआईएम लखनऊ से स्टार्ट करेंगे. चलो भाई. आईआईएम की बात कर रहे, सो वेल, जब इंडिया में जब सब कुछ यही है तो कहीं और क्यों जाना. जब सब कुछ यही है तो कहीं और क्यों जाना. एंड अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो भाई, अगर कोई बाहर पढ़ेगा, बाहर रहेगा, तो बाहर अगर पैसा ज्यादा मिलेगा, सो बाहर के लिविंग स्टैंडर्ड, खर्चा ज्यादा है, उधर से इंडिया भी भेजो. इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी ना, अब तो वहां रहने वाले हो, क्या फायदा. इससे बढ़िया यही रहो. यही रहो, मौज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, एंड जितना है सेटिस्फैक्शन मीटर सबका अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ढूंढो. आई विल जस्ट ओनली से दिस इज द लास्ट वर्ड. बाकी सबको अपना अपना जिसको जो करना है. व्हाट विल आई से. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आई विल जस्ट ओनली से दिस. नो, यू आर ट्रूली राइट. अपना देश सबसे अच्छा होता है, ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. और आज के टाइम में तो जो इंडिया में लॉकडाउन में फंसे हैं, थैंकफुली वो खुश हैं कि वो घर में हैं.
तो बाहर बाहर से आके रह रहे हैं, तो ये बात फैक्ट है। आई अग्री टू दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन अगर उसी हिंदुस्तान में हम एक बढ़िया सा हार्वर्ड की डिग्री लेके रहने लगे तो और भी अच्छा है। और भी कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो वो हो जाएगा जब आप हार्वर्ड लेकर के यहाँ आके काम करोगे। ये बात आई एग्री, परफेक्टली एग्री। ओके, सो दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट वेबिनार जहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं मतलब किस तरफ बोलूं या किसके साइड जाऊं मैं। सो एनीवेज, so guys, I mean, thank you so much for all your insights। और हार्वर्ड का ड्रीम ऑब्वियसली देखना है जब पजेरो का ड्रीम हो, और पजेरो का ड्रीम हम लोग इंडिया में भी फुलफिल कर सकते हैं। आई एम से मैम। एनीवेज, so all right guys, so I hope that ये session बहुत informative रहा। I mean, it was entertaining for me as well, it was informative for me as well। Thank you so much educators। All right, so coming back to Unacademy, well, we have an upcoming Mass ET, we have a CAT 2020 weekend batch starting from today, and we have a free mock test which is gonna be held tomorrow। So for all those aspirants who wants to pursue MBA from the Indian universities as well as the foreign universities, can take the free mock test tomorrow just to check your levels of preparation, and can work on it, strengthening your weak points and giving a little bit of lesser time on your hard links। So that's all for now। So if like any of our educators would like to send in some message for the CAT 2020 or the GMAT 2020 aspirants, ma'am. I study hard. All the best to alone. all your efforts. Wherever you go, we are with you। Yes. I was also about to say the same, कि पढ़ लो। Don't think much, पढ़ लो सबसे पहले तो। Sure। So with this, I would like to close this discussion and end the session। Well, thank you so much, viewers, for your precious time of being with us and watching this session. And special thank you to our educators, Abhilasha ma'am and Bhageshri ma'am, for taking out time from the busy schedule। In fact, they have classes upcoming in the next 6 minutes. So even they are working hard. So I hope our learners learn something from their hard work। All right, ma'am, thank you so much, and wish you a very happy weekend। Stay home, stay safe, and do keep watching Unacademy Catalyst। We'll be back with some more sessions like this। Thank you so much। Thank you। Bye-bye। Bye-bye.